خود جیت جائیں تو جی عوام نے ہمیں پسند کر لیا، ہمیں سلیکٹ کیا، اور جب اگر یہ ہار جائیں تو کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بات سنیں، آپ کور کرنا چاہ رہی ہیں لیکن یہ چیزیں کور ہوں گی نہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ عالمی میڈیا ساری دنیا نے ہم نے کہا ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، پیپلز پارٹی کی کابینہ میں ممکنہ شمولیت اور صدر زرداری کی جانب سے سیاسی مفاہمت کی تجویز پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پی ٹی آئی کی رہنما رضوانہ غضنفر فاروقی صاحبہ، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر عائشہ عبداللہ نے، جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ممتاز صحافی و اینکر پرسن مصباح سعید صاحبہ. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. پروگرام کا پہلا سوال رضوانہ صاحبہ آپ سے ہے کہ جی صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران آپ کے اراکین نے جو نئی جدت اور بدت کریٹ کی، آپ کے اراکین باجے بجاتے رہے، آپ کے اراکین گالم گلوچ کرتے رہے، سیٹیاں بجاتے رہے، اس کے نتیجے میں آج اسپیکر نے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کو قومی اسمبلی کے رواں اجلاس سے معطل کر دیا ہے. اب آپ یہ فرمائیے کہ یہ پارٹی کی ڈائریکشن تھی، اراکین کا ذاتی فیل تھا، اور کیا ہم اسی قسم کے واقعات آئندہ بھی دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقیم صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرف کے دور یا اس سے پہلے یہ ایک ریت بن گئی تھی کہ جب بھی صدر پاکستان کی تقریر ہوتی تھی تو اس طرح کا شور شرابہ ہمیشہ ہم نے دیکھا. ایک چیز یاد دلاتی اس کے بعد ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں، یہ جو اسمبلی ہے، یہ جو اراکین ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت اس طرح اس لیے نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں، جس طرح سے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، تو یہ اس حساب سے اب ایک ریت تو بن گئی کہ جی صدر کا خطاب ہوتا ہے تو شور شرابہ ہوتا ہے. پچھلے دہائیوں میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو بھی کیا اراکین نے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک پروٹیسٹ تھا، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آئے تو ضرور ہیں، لیکن جس طرح سے فارم 47 کے تحت یہاں پہ لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور جس طرح ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو یہ ایک پروٹیسٹ کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروٹیسٹ، یعنی کہ وہ ایک پروٹیسٹ تھا کہ جو کیا گیا اور جو بار بار کیا جا رہا ہے اس اسمبلی میں کہ جو اراکین ہیں ان کو مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے. ساری دنیا نے دیکھا کہ 8 فروری کو مینڈیٹ کس کو ملا، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں دھاندلیاں تو ہر الیکشن میں ہوئی ہیں، لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے کہ جس طرح فارم 45 اور 47 رزلٹ جو ہے وہ 2-3 دن گزر گئے ہیں، رزلٹ نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب فارم 47 کے تحت جن لوگوں کو اپنی مرضی سے زبردستی مسلط کیا گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروٹیسٹ تھا. اور جن کو صدر بنایا گیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی عالمی دنیا میں ایک شہرت ہے ان کی کرپشن کی، ان کے لیے ڈاکومنٹریز چل رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور جس طرح سے ساز باز کر کے یہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، تو نو ڈاؤٹ یہ ایک پروٹیسٹ تھا. اور یہ جو ہے وہ اراکین نے جو بھی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابھی سیریز آنی باقی ہے. چلیے میں بڑھتا ہوں ڈاکٹر عائشہ عبداللہ کی جانب. آپ پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روایت پیپلز پارٹی نے قائم کی تھی. غلام اسحاق کے ٹائم میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے گو بابا گو کے نعرے لگائے تھے. غلام جی خود بالکل. تھے، آپ کے بھائی فاروق لغاری، ان کے اوپر چوڑیاں پھینکی گئی تھیں اسمبلی میں. تو اب یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیوں نے یہی وتیرہ بنا لیا ہے کہ جس وقت صدارتی خطاب ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلیت ظاہر کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مہذب طریقے سے کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کریں یا اس خطاب کے اوپر اپنے اعتراضات کو رجسٹر کرائیں. وہاں ایک عجیب قسم کی مچھلی منڈی کریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اس کی ذمہ داری تو قبول کریں گی نا کہ یہ ایجاد پیپلز پارٹی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
जी मैं ये कहूँगी कि हम इसकी जिम्मेदारी तो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन देखें किसी भी जमहूरी अगर जैसे जमहूरी तौर पे अगर हम लोग कहें तो हर एक को अपनी राय का देने का हक है। तो बिल्कुल अगर वो इस तरीके से आप समझते हैं कि बेनज़ीर साहिबा ने इस तरह से किया था और इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो ये बिल्कुल हर बंदा अपनी राय दे सकता है, मैं कहूँगी। और वो उन्होंने अगर अपनी राय दी थी तो उसको एक लिमिट पे रह के उन्होंने अपनी राय दी थी। इस तरह की जो जिस तरह से ये अब किया गया उस तरीके का माहौल नहीं था, और बहुत जो सियासत की जाती थी उस टाइम, सियासत काफ़ी बेहतर थी। अब जब से ये पीटीआई है, ये 2017 का जो इलेक्शन हमारी आवाम पे मुसल्लत किया गया था, जिसमें हम आपको पता है कि हमें माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आलमी सतह पे जो ये कह रही है मेरी बहन, आलमी सतह पे हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, और हमारे मुल्क को बदनाम किया गया, हमें करप्ट कहा गया, हमारे मुल्क के सियासतदानों को करप्ट कहा गया, हमारे मुल्क को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और जिस तरीके से विद इन नो टाइम अब जिस तरह से प्रोग्रेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत खुश आइन बात है। और आगे आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा कि हम लोगों ने हम मुसल्लत किए गए नहीं हैं। बात यह है कि मुसल्लत तो 2017 का इलेक्शन किया गया था। उस टाइम इन लोगों को लाया गया, ना तजर्बेकार लोगों को, और उन्होंने हमारे मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है आप देख सकते हैं इंटरनेशनली भी जो है ये मंजर-ए-आम पे बात आ रही है कि अब पाकिस्तान जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ है, और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतरी की तरफ गामजन है। तो मैं नहीं समझती कि इस तरीके की हरकतें असम्बली में होनी चाहिए। ये एक गलत हरकत है, लेकिन ये है कि आप लोग एक अपनी लिमिट में रह के अपने राय का हक ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये समझते हैं कि ये इलेक्शन चोरी किया गया है या कुछ इस तरीके का है, तो फिर आप लोगों को सीट्स लेनी ही नहीं चाहिए थी, आपको आवाम को दे देनी चाहिए थी वापस, और आवाम जो है अपने इलेक्टेबल्स खुद लेके आती, खुद जीत जाएं। तो जी आवाम ने हमें पसंद कर लिया, हमें सेलेक्ट किया, और जब अगर ये हार जाएं तो कहते हैं कि जी धांधली हुई है। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को खुश दिली के साथ नताइज को जो है कबूल भी करना चाहिए, ये एक बड़ापन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जरदारी साहब इस टाइम सदर बने हैं, मेरा ख्याल है कि वो डिज़र्व करते हैं, और इस मुल्क को वाकई ही ऐसे ही सदर की ज़रूरत है जो इस मुल्क को जो है तरक्की की राह पर गामजन कर सके, क्योंकि 2017 के इलेक्शन के बाद इस मुल्क का बड़ा सत्यानाश हुआ। जी 2018 का आप बार 2017 कह रही, मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं कि 2018 में इलेक्शन हुए थे। चले जी 2018 में जब इमरान खान मुसल्लत किए गए थे तो काफी ज्यादा इमरान खान मुसल्लत नहीं किए गए थे, ये सारा मुसल्लत जो अब जो हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा। हमें इसमें मेरा ख्याल है बहस करने की जरूरत नहीं है, जो देखिए दीदी मेरी बात सुने, अब बात सुने, आप कवर करना चाह रही हो, लेकिन ये चीजें कवर होंगी नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जिसपे आलमी मीडिया सारी दुनिया ने हमने कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये के दौर में आया और कोई प्रोडक्टिव देखिए दीदी आप कवर कर नहीं पाएंगी, ये एक फैक्ट है, सारी दुनिया ने देखा, आलमी मीडिया यहाँ पे आया था कि जो जिस तरह का ये इलेक्शन थे, 3 दिन गुजर गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, 445 447। चलिए देखिए वो एक मैनेज था, वो लंदन प्लान का हिस्सा था, ये होना था, ठीक है। अवाम ने की हमारे लिए, वोट भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन लंदन प्लान का एक हिस्सा था। देखिए आंखें कबूतर की तरह आंखें बंद करने से, दीदी कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कि ऑल इज वेल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सब पे आया है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की अवाम जानती है, इसलिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने 35 साल में क्यों नहीं मईशत को आसमान तक ले गए? हुकूमत में तो आप थे, 35-40 साल से तो आप 2 पार्टियां कर रहे थे, आपने तो सिर्फ कर्ज लिए, कर्जों के ऊपर सूद लिया, सूद दर सूद आपने लिया। आप हमें क्या ब्लेम करते हैं कि
40 साल आप दोनों बारियां लेते रहे हैं, आप दोनों भाई भाई जो बने हुए हैं, बारियां तो आप लोग लेते रहे हैं। मुझे बताएं, हमने 3 सालों में आके तो क्या है कि जो कर्जे थे वो हमने लिए, आज पाकिस्तान की मईशत को हम यहाँ तक लेके गए हैं। नहीं, आप जवाब दें, अच्छा जी, आप जवाब दें। आई एम रिजवाना सॉरी, साहब, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। अरे मुझे देखिए, मुझे कर्जों की आप बात, जो 35-40 साल से बर्बादी आपने कराई है, आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखिए, बात करके फैक्ट्स के साथ बात करें, मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप गलत बात करेंगी तो मुझे टोकना पड़ेगा। अच्छा नहीं देखें, आप आपने अपनी टोके मत, मैं तो खुद आपको टोकना चाहती हूँ कि पीटीआई ने इस टाइम इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। हमने 3 साल में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, और पिछले 40 सालों में दूध की नहरें बह रही थी, सब कुछ बहुत गुडी गुडी हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था हमारे टाइम पे। पीटीआई की वजह से कर रही प्लीज है। देखिए, हमारे पास वक्त कम है, सवाल बहुत हैं, दूसरे मेहमान भी हैं, आपकी मेहरबानी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरा अगला सवाल रिजवाना साहब आपसे ये है कि आपकी पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने रिजीम चेंज का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर दे दिया, बाद में पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है। अभी और जबकि पीएमएलएन के रहनुमा ये कह रहे हैं और पीपीपी के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि ये उनके ज़रिए एक फ्लोट किया गया बयान था। तो क्या ऐसा ही है, या शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक मिसगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं जो किसी के ऊपर किसी भी वक्त भी गिर सकते हैं? देखें, शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा, पार्टी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी ने उससे कहा कि वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का नैरेटिव बिल्कुल ये नहीं है, ना पार्टी का होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि खान साहब का जब दौरे हुकूमत में जब शेख वहां से आए तो उन्होंने हमारी जिस तरह से 3 अरब रुपए रखवाए, उसके अलावा जिस तरह से एक वो हमारे खान साहब ने जब हमारे लोगों के बारे में कहा था कि उनको आप आजाद कर दें, तो जिस उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी मैं मतलब मैं एक सफीर हूँ, यानी मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर हूँ। तो ऐसी हम कोई बात नहीं है, बाज़ौक़ात होता है, अगर शेर अफजल मरवत ने ये कहा है तो ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन ना तो ये पार्टी का मौक़िफ़ है, ना पार्टी की सोच है, और ना ही इसको हम ओन करते हैं। ये सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि ये शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिया, पब्लिक सेंटीमेंट क्या है? बतौर सहाफ़ी आप क्या देख रही हैं? अच्छा वकील साहब, मैं शेर अफजल मरवत साहब के बयान की तरफ आऊंगी। इससे पहले बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी साहब के पार्लियामेंट खिताब के हवाले से, तो मैं उसमें अपना ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं, बल्कि तमाम देखने वाले भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। तो जमहूरियत से मुराद यही होती है कि वो अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए होती है और अवाम के जरिए से होती है। अब जमहूरियत में हर शख्स को आजादी इजहार राय का हक हासिल होता है। अब उस जमहूरियत में ऑपोजिशन को भी भरपूर जो है वो इख्तिलाफ राय का हक हासिल होता है। कल जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, वो आज की वक्त की जो ऑपोजिशन है उसने अपना जो हक है इख्तिलाफ राय का वो उसने इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर ये जो चीजें हैं, आई थिंक सो ये कोई मुनासिब नहीं है, ये सूट नहीं करता कि उसके ऊपर इस तरह का कोई जो है वो स्टैंड लिया जाए कि जो पोजीशन है उसे भी इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। आपने देखा इससे कबल कि इसी जो है वो हाउस ऑफ द फ्लोर के ऊपर हमने देखा कि वो घड़ी लहराई गई, जिसका इब्तिदा जहां से होती है, हर एक जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन तो फिर आपको भुगतना पड़ता है। आपने आते साथ एक आगाज कर दी थी और उस आगाज का जो है वो अंजाम आप आज भी भुगत रहे हैं, ये तो बात खत्म होगी। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के बयान की। तो जिसको जो है वो इस वक्त पार्टी खुद भी ऑन नहीं कर रही, पार्टी ने इस चीज से जो है वो डिनाई कर चुकी है। अब इसको जो है वो शेर अफजल मरवत साहब की आप पर्सनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन इसको पीटीआई से रिलेट नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात आप करें कि इसके ऊपर जो है वो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त ये तो सब देख रहे हैं कि जो पीटीआई की एक वुकला बरादरी पीटीआई कह लें उसको, वो सेपरेट है, और इस वक्त जो हकीकी मानों में
PTI है जो एक अरसे से जो है वो खान साहब के साथ है, जिनमें रिजवाना साहिबा भी जो है वो उसी आई थिंक सो ये उन्हीं लोगों में शामिल है। अब ये जो PTI वुकला पार्टी जिसको कहा जा रहा है तो एक ही PTI, लेकिन चूंकि इसके हवाले से जरूर जो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा जो है वो कुछ अच्छा नहीं है, चूंकि इसके ऊपर जो है वो शहरियार अफरीदी साहब ने परसों नेशनल स्क्रीन के ऊपर भी इस बात को एडमिट किया, और शानदाना गुलजार साहिबा ने भी नेशनल स्क्रीन के ऊपर कल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसका दिफा भी किया। उन्होंने भी ये बात वाजे कर दी कि पार्टी के अंदर कुछ इस तरह के खिलाफात नहीं है जो पब्लिक को बताए जा रहे हैं। हाँ, वहां पे हमारी इन चीजों के ऊपर पार्टी के ऊपर जो कुछ पहले के मामला के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े खिलाफात वो भी आता है जो खान साहब की मर्जी के मुताबिक होता है। अब ये तो जो पार्टी के बड़े दरीना लोग हैं ये उनकी रहे हैं, तो पब्लिक अगर आप बात कर रहे हैं पब्लिक को तो फिर जाहिर सी बात है बाहर आके जो चीज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप जो बताएंगे लोग उसको उसी तरह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर लोग फिर वो उसी बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहबा, वजीर अपना सदर पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट से खिताब था उसमें सर्विसेज चीफ्स, पंजाब और KPK के वज़रा, गवर्नर पंजाब, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। इस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या उन लोगों को आसिफ अली जरदारी की तकर्री पर एतराज़ है या कोई और मसला है कि जिसकी वजह से इस प्रेस्टिजियस इजलास में इन शख्सियात ने शिरकत नहीं की? जी, देखें जो इजलास हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोग मौजूद भी थे, लेकिन अगर कुछ भी लोग मौजूद नहीं थे तो मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनकी तकर्री पे किसी को एतराज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो तकर्री हुई है ये डेफिनेटली सबकी बाबी मुशावरत से ही हुई है। और इस टाइम जो मुल्क की करंटली सिचुएशन है अगर आप उसको देखें तो इस टाइम मईशत का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर चुका था और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इस टाइम हमें ऐसे ही किसी सदर की ज़रूरत थी जो कि इस मुल्क की बागदौड़ एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें, और जरदारी साहब का जो नाम है वो डेफिनेटली सबकी बामी मुशावरत से ही आया है। इसमें मेरा ख्याल है कि इस तरीके की कोई बात करके जो है इसे कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। क्वेश्चन ये आपकी तरफ है रिजवाना साहबा। सदर जरदारी ने अपने खिताब में सियासी मुफाहमत की तजवीज़ पेश की है, क्या PTI उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उनके साथ बैठ जाएगी? देखिए, अभी तक अगर हमने बैठना होता तो इससे पहले भी हमारे लिए ये ऑफर थी कि जी हम बैठ के इनके साथ कोalition में गवर्नमेंट बना लें। बात वही है कि जब हमारा खान साहब का मौकफ यही जब रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है या जिन्होंने जो भी आप खुद जानते हैं कि जो करप्शन और जिस तरह से ये की है, तो हम उनसे हाथ जो है वो बिल्कुल हमारा यही मौकफ है कि वो इकट्ठा बैठना उनके साथ जो है वो बनता ही नहीं है कि जो जिस पे हमने स्टैंड लिया है हमेशा। अगर हमने बैठना होता तो शायद इस वक्त खान साहब जेल में ना होते, शायद अभी हालात बहुत कुछ डिफरेंट होते। अगर हमने भी इन लोगों की तरह ही वो डीलें करनी होती तो आज हम इस मुश्किल में हमारे कारकुन ना होते कि आज जो आप देखें कि पूरा साल होने को आ गया है और अभी तक जो है वो खवातीन को जिस तरह से बंद किया गया, जिस तरह से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जो कुछ हमने देखा, अगर हम भी डील करने वालों में से होते, हम भी इन्हीं चोरों के साथ बैठने वालों में होते तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो हमने ये सारी सख्तियां भुगती हैं, हमने ये सब मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और ये इसीलिए है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अवाम भी हमें इसीलिए कल के मैंडेट दिया है अवाम ने कि हम जानते हैं कि अगर हमारी अवाम भी हमसे यही जो है वो एक्सपेक्टेशन उनकी यही है हमारे साथ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया। विस्वा साहिबा, क्विकली हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत को कम कर दिया। उन्होंने खुद भी ज़ाती तौर पर जाकर उसका मुआयना किया। इसके अलावा वो स्कूलों के दौरे भी कर रही हैं, वो ख़वातीन के इदारों में भी जा रही हैं और माज़ूर अफराद के साथ भी उन्होंने ईद के मौके पर वक्त गुजारा, उनके साथ खाना खाया। तो
ان کی جو یہ ساری ورکنگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنا ایک ڈفرینٹ امیج بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں؟ اچھا وکیل صاحب آپ نے کھانے کا ذکر کیا آپ ایک بار مس کر دی اور وہ بیساکھی میلے کا افتتاح کرنے آپ کو دیا. اچھا چیز جو ہے وہ پورے کتنے سے جو کام تو نہیں ہوگا آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ 16 روپے کے بیچ نہیں ہوگی. آپ پہنچ گئے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھی بات ہے. آپ اسکولوں کا دورہ کر کے بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کریں لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا صرف جو ہے وہ محض اعلانات کرنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اسکول کی جو گورنمنٹ سیکٹرز کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ بہتر ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ کو جو ہے وہ ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض مریم صاحبہ نے تو بلکہ آتے ساتھ عوام کو یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی. ایئر ایمبولینسز کا آغاز بھی وہ کرنے جا رہی ہیں لیکن دور دور تک اب کہیں اس کے امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. لیکن امید جو ہے وہ عوام اچھے کی ہی رکھنی چاہیے اور اچھی بات ہے امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے. لیکن آتے ساتھ آپ عوام کے ساتھ جو ایک بہت اچھی کمٹمنٹ تھی وہ یہ بھی تھی کہ 300 بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ عوام کو فری دیے جائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چوتھی بار جو ہے وہ مسلسل جو بجلی کی قیمتیں ہیں تیسری دفعہ اس میں اضافہ کیا گیا. پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں اور جو روٹی کی قیمت آپ نے 16 روپے کی ہے آپ نے 4 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت 4 روپے 94 پیسے یعنی 5 روپے ہے وہ آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے ادھر 4 روپے آپ نے روٹی کی قیمت کم کر دی ہے. اس کا مطلب آپ متوازن مہنگائی کر رہے ہیں اور اس مہنگائی کے اوپر آپ ایک طرف سے رکھ کے دوسری طرف نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے اور میرا یقین یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ صرف کچھ چند دورے کر کے کسی اسکول میں جا کے بیساکھی میلوں کا افتتاح کر کے آپ عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے. کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ آفر کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسے قبول کرے گی یا نہیں؟ جی بالکل جیسے کہ آپ کو بتائیں شروع میں ہی چیئرمین صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ ہم کسی بھی وزارت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم کابینہ میں ہم کوئی ابھی ایسی وزارت نہیں لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ چیئرمین صاحب اپنی کسی بات سے ڈینائی کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہی اس بارے میں بیان دے چکے ہیں کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ میرے خیال سے ابھی کوئی بھی وزارت نہیں لیں گے. بہت شکریہ جی. آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو. خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر عائشہ عبداللہ، پی ٹی آئی کی رہنما رضوانہ غضنفر فاروقی اور ممتاز صحافی مصباح سعید صاحبہ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.